ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। If she is pitted against Arvind Kejriwal, then do you think it will be a tough competition for Aam? See, the Prime Minister is pitted against Arvind Kejriwal. 3 Chief Ministers are pitted against Arvind Kejriwal. 400 MPs are pitted against Arvind Kejriwal. Now Kiran Bedi is pitted against Arvind Kejriwal. It just goes to show how nervous the BJP is today. The BJP knows that they have lost a lot of support on the ground that they may have had at the time of the Lok Sabha elections. They know that there's a groundswell of support behind the Aam Aadmi Party. So they're going to try many things one after the other to try and come back into these elections. But now I think it's too late. Whether they get X, whether they get Y, Aam Aadmi Party is going to sweep the Delhi elections. We just need to wait for the 10th of February and Delhi will know that Arvind Kejriwal is the next Chief Minister. You have always leveled allegations over BJP that, they are indulged in corruption and all activities. But this time, she was, Kiran Bedi, as far as Kiran Bedi is concerned, she was involved in anti-corruption movements, and this time she has joined BJP. Which is why you need to ask Kiran Bedi, what does she think about the allegations of a conflict of interest between Satish Upadhyay and the BSES? What does Kiran Bedi think about the conflict of interest between Ravi Shankar Prasad and Reliance Communication? These are questions that Kiran Bedi will have to answer. That is she comfortable going into a party where Yediyurappa is one of its main leaders? Is she comfortable going into a party whose corruption is well known throughout the country? So this is not a question for us to answer. This is a question for her to answer. क्या किरण बेदी ने भाजपा ज्वाइन कर लिया? देखिए, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चल रहा था और आम आदमी पार्टी की शुरुआत हो रही थी, तब किरण बेदी खुद कहती थी कि पार्टी पॉलिटिक्स के वो खिलाफ हैं, कि उन्हें लगता है कि एक अलग से मूवमेंट चलना चाहिए और वो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। परंतु आज उन्होंने अपना फैसला बदला है, वो भाजपा में आने के लिए तैयार हुई है। स्वागत है उनका भारतीय राजनीति में। अगर उनको चीफ मिनिस्टर एज सीएम फेस अगर भाजपा रखती है, कहीं ना कहीं आपके लिए लगता है कि कॉम्पिटिशन टफ होगा? देखिए, भाजपा की ये हालत है क्योंकि उन्हें एक अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए एक प्रधानमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, 400 सांसद की आवश्यकता है। अब उसमें शाजिया आलमी, किरण बेदी, जया प्रदा भी जुड़ गई हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भाजपा डरी हुई है। भाजपा को पता है कि जमीनी तौर पे अब वो हार रहे हैं। जो पकड़ उनकी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बाद थी, वो कम हो गई है। आम आदमी पार्टी के पीछे जन सैलाब है। आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है, इसलिए वो कई प्रकार के प्रयास करेंगे अगले 3 हफ्ते में कि वो किसी प्रकार से इस चुनाव में वापस आ जाएं। परंतु हमारा मानना है कि अब बहुत देर हो चुकी है। 10 जनवरी को जब चुनावी रिजल्ट्स आएंगे तो ये स्पष्ट होगा कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अन्ना टीम बिखरने के बाद वो इसके खिलाफ थी कि कोई एक पार्टी संगठन बने, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है। और अब वो खुद बीजेपी ज्वाइन कर रही है, वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी। और वो जैसा आपने कहा, बीजेपी हमेशा करप्शन में इस तरह इन्वॉल्व हुई है और खुद वो बीजेपी ज्वाइन कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल तो आपको किरण बेदी जी से करना पड़ेगा कि क्या वो चाहती हैं कि वो ऐसी पार्टी में जाएं जहां पे वहां के दिल्ली स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट सतीश उपाध्याय, उनका नेक्सस डिस्कॉम से निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से बढ़ते हुए बिल्स हैं। क्या वो ऐसी पार्टी में जाना चाहती हैं जिन पे जहां के रवि शंकर प्रसाद खुद रिलायंस की रिटेनरशिप पे हैं? क्या वो ऐसी पार्टी में जाना चाहती हैं जहां पे येडियुरप्पा जैसे लोग नेता हैं? तो ये सवाल तो किरण बेदी से आपको पूछना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली किरण बेदी एक भ्रष्टाचारियों से भरी पार्टी में क्यों जा रही हैं? खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।